Hello and welcome everyone. In this video, we'll be talking about the chapter number 5. Yeah, this is lecture number 5. And so far in this Good Side series, we have completed the 4 lengthy chapters of physics, be it from the theory point of view or the MCQ point of view. Herein what we'll be talking of is various MCQs that are part of this magnetization chapter. Moving charges and magnetization to be very precise. So yeah, herein the number of questions are now lesser because we are left with shorter and medium lengthy chapters. So one by one we'll be going for it, but little faster. Possibly the video's length will be shorter now, and possibly I might be posting 2 videos a day. So be careful about that thing also. So do complete the work as soon as I post it very fastly. So which of the following, first MCQ, which of the following is not the unit of magnetic induction? Magnetic induction is the other name of magnetic field. और magnetic field की unit क्या होती है वो हम जानते हैं. Magnetic field unit is Tesla. Yeah? So इसमें से कौन सी unit उसकी नहीं है? तो एक hint तरीके से सिखाया था कि टेस्ला एक नाम है. टेस्ला एक नाम है, मीन्स न्यूटन पर एम्पियर मीटर. मैच कर लीजिए डायमेंशन फॉर्मूला के तहत, आपको आइडिया आ जाएगा. वेबर पर मीटर स्क्वायर उसकी ही यूनिट है फ्लक्स के टर्म्स में. सो मैच इट. फर्दर, ferromagnetic materials have blank permeability and blank retentivity. As far as retentivity is concerned, it's not in your syllabus, but yeah, permeability is in your syllabus. This was also asked in February 2025 examination also. So उसकी परमेबिलिटी हाई होती है भाई और रिटेंटिविटी लो होती है, लेकिन फिर भी आपका आंसर यहाँ पे हाई और लो आएगा. रिटेंटिविटी आपको नहीं देखनी है, रिटेंटिविटी के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है. बार मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ QM एंड मैग्नेटिक मोमेंट M इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स अलोंग इट्स लेंथ. अब देखिए ये अच्छे क्वेश्चंस है. अब आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ L है. अब आपने क्या किया है, इसको अलोंग द लेंथ डिवाइड किया है. अब आप समझना, पोल स्ट्रेंथ इज QM, मतलब यहाँ QM है और यहाँ पे भी QM है, या प्लस माइनस यू कैन से. अब इसको जैसे हम आधा काटेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस. नाउ द पोल स्ट्रेंथ, न्यू पोल स्ट्रेंथ विल बी रिड्यूस. मान लीजिए वो QM डैश है, तो वो QM डैश क्या हो जाएगा, QM divided by 2, but the length is L only. What they are asking is the new pole strength is, it's QM by 2, sorry, and the magnetic moment. by magnetic moment क्या होती है, M is equal to pole strength into length. pole strength कितनी है, QM by 2 into length कितनी है, L. तो सर इसमें मतलब ये नई वाली मैग्नेटिक मोमेंट है, तो उसको कंपेयर किसके साथ करना है, पुराने वाले के साथ. पहले कितनी थी पोल स्ट्रेंथ आपके पास, M is equal to QM into L. QM into L को M बोल देंगे तो इट्स M by 2. It's C to be very precise. Further, a solenoid has a core. भाई देखिए 4th and 5th चैप्टर में सोलेनॉइड के सम्स बहुत ज़्यादा आएंगे, न्यू 0 NI वाले, लेकिन आपको डेटा को अच्छे से समझना है फिर उसको सॉल्व करना है. Has a core of material with relative permeability 400. The windings of solenoid are insulated from the core and carry a current of this much. If the number of turns is 1000 per meter, the magnetic field inside the solenoid. भाई मटेरियल अलग है, तो जब मटेरियल अलग होता है, मतलब एयर नहीं होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाय न्यू इनटू NI. न्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. अब न्यू को हम कैसे शॉर्ट आउट करें, तो न्यू R रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू न्यू अपॉन न्यू 0. तो न्यू क्या होएगा, ये इस तरफ आएगा, आपको आंसर मिल जाना चाहिए. A solenoid is a core of material with relative permeability 400. अच्छा, ये आई थिंक सो क्वेश्चन इज रिपीटेड पॉसिबल, या उसके जैसा ही क्वेश्चन है. सो कर लेना भाई आप, वही तो नहीं है ना, नहीं. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सेम थिंग यू कैन डू इट. A short power magnet placed with the axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of this much Tesla experiences a torque. भाई टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, magnitude of torque is given by
m क्रॉस b, दैट इज नथिंग बट mb sin थीटा। यहाँ से आपको मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढना है जो कि मिल जाना चाहिए आपको, फॉर्मूला यूज करोगे तो सडन। अच्छा ये नहीं करना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड्स ड्यू टू बार मैग्नेट ऑफ लेंथ दिस मच एंड एट अ डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर। ये आपके लिए r है, ये उसकी लेंथ है, या मतलब ट्वाइस l बोलते हैं जिसको, लेंथ को हम ट्वाइस l बोलते हैं। जस्ट इन द केस ऑफ डाइपोल, हम डाइपोल में जैसा करते थे वैसा ही यहीं पे है, क्या? तो 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट द मैग्नेटिक मोमेंट इज सो एंड सो। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज गिवन बाय 2 kp अपॉन r क्यूब। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज गिवन बाय, भाई 2 को तो आप ऐसा ही रखो, k की बजाय मैग्नेटिक केस में क्या आ जाता है न्यू 0 अपॉन 4 पाई, p मतलब डाइपोल मोमेंट की बजाय मैग्नेटिक मोमेंट आ जाती है, और r तो r ही रहेगा। सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। ये वाली फॉर्मूला यूज करिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला अच्छे से आनी चाहिए आपको। ओके, डिक्लेरेशन एट दिल्ली, इट्स 41 मिनट ईस्ट, या इट्स डी बट नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सोलेनॉइड, अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पे रिपीट हो रहे क्वेश्चंस, तो देखो आप अच्छे से इसको। लेकिन इसमें हाँ सॉरी, दे हैव आस्क्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब H बोलते हैं जिसको, दैट इज नथिंग बट I इनटू फ्री करंट, I इनटू IF, मतलब IF दिया है आपको, या इट्स 2 एम्पियर। सो ये तो आ जाएगा आंसर सीधा सीधा, ये 2 एम्पियर है और पर मीटर की लेंथ के ज्यादा, या आ जाना चाहिए आंसर। एलिको इज एलॉय ऑफ, या इट्स एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, वो तो दिखता ही है आपको नाम के अंदर, बट कॉपर भी होता है इसके अंदर। एक्सक्यूज मी। A substance is placed in non-uniform magnetic field. It experiences weak force towards strong field. The substance is blank. भाई समझिए, आपको ये तीनों मटेरियल्स के बारे में, या डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चन एक मतलब फरवरी 2025 में भी आया था और यहीं पे भी पूछा है। तो जैसे कि डायमैग्नेटिक में क्या होता है भाई, इट एक्सपीरियंसेस, हम नॉर्मली ऐसा सिखा था, डाया है वो डाया नहीं, मतलब वो स्मार्टर नहीं, वो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वीकर साइड फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर, सच लाइक आप क्वेश्चंस को मतलब क्रैक कर लोगे। सॉरी 14th नहीं करना है। सिलेक्ट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b स्क्वायर अपॉन 2 न्यू 0 पे, b स्क्वायर अपॉन 2 न्यू 0 समथिंग बट एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। न्यू 0 इज परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, chi n is susceptibility, then permeability। भाई ये रिलेशन ऑलरेडी हमने देखा था इलेक्ट्रिकल साइड, सेम इज द केस फॉर मैग्नेटिक साइड। रिलेटिव परमेबिलिटी जस्ट लाइक k को हमने क्या लिखा था 1 प्लस chi e, यहाँ k का रोल कौन प्ले करता है न्यू r, इट्स 1 प्लस chi m। न्यू r का मतलब क्या होता है न्यू अपॉन न्यू 0। मैच कर लीजिए जो भी ऑप्शन सेट हो रहा है। 17 नहीं करना है, 18 भी नहीं करना है। द रेशियो ऑफ पीरियड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, भाई देखिए ये वाले अच्छे क्वेश्चंस हैं। हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ पे रेडियस क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, r इज इक्वल टू mv अपॉन qb, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में पूछा है, तो वेलोसिटी को आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टाइम पीरियड t, वो r की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, टाइम पीरियड को सब्जेक्ट करिए और सॉल्व करिए। अल्फा पार्टिकल मतलब ट्वाइस प्रोटॉन, उसका चार्ज, और प्रोटॉन का चार्ज तो e ही होता है, तो इसका चार्ज 2e हो जाएगा। मास भी कंपेयर करना आना चाहिए। इसका मास अगर m है तो अल्फा पार्टिकल 2he4, 4m उसका मास होगा। मैच करना पड़ेगा अच्छे से। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल दिस मच 27 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सॉरी, सो कॉल्ड chi m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप केल्विन में लेना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर सो कॉल्ड, आ जाएगा आंसर। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट सम प्लेस ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर। अब इक्वेटर पे कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड? अभी अभी सिखाया। एक्सिस पे क्या होती थी? दैट वाज ट्वाइस। और इक्वेटर पे क्या होती है? वो सिंगल आएगी भाई, क्या? न्यू 0.4 पाई m अपॉन r क्यूब, और इसमें भी ट्वाइस आ जाएगा, लेकिन सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। ज्यादातर प्रैक्टिस ही है, ये नहीं करना है।
domain of this ferromagnetic materials is form of cube, contains this many atoms, and each atomic dipole moment has this much 16 into 10 to the power minus 24. अच्छा, मैग्नेटाइजेशन, जो कि हम कई बार बोलते हैं कि भाई मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट्स नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, यहाँ पे एक की डाइपोल मोमेंट 16 into 10 to the power minus 24 है। ऐसे कितने एटम्स है, दिस मैनी, तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अच्छे से लिखना, क्यूब लिखा है, क्यूब की लेंथ है 2 माइक्रो, 2 into 10 to the power minus 6, उसका क्यूब लेके काम करना है। ऐसे कैलकुलेशंस में, कैलकुलेशन तो इजी है लेकिन फिर भी क्या है कि सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, नहीं करना है ये वाला। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द शॉर्ट बार मैग्नेट डायपोल मोमेंट ऑन द एक्सिस, पे एक्सिस की बातें कर ली भी ऑलरेडी। अच्छा, डायरेक्शन तो नहीं पूछा है ना, नहीं। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, अभी बोला मैंने शुरुआत में, आना ही चाहिए आपको। मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन फॉर्मूला देखोगे तो एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर है, सॉरी यूनिट। तो मतलब जल्दबाजी में ये मत टिक कर देना, देखना पड़ेगा कि कौन सा बेहतर वाला ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट पहला और दूसरा तो नहीं होगा, तो मतलब टॉर्क वाली फॉर्मूला यूज करें, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, वहां से एम मिल जाएगा। शॉर्ट बार मैग्नेट लेंथ दिस मच, मैग्नेटिक मोमेंट दिस मच, एक्सियल लाइन पे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लगा दीजिए। शॉर्ट बार मैग्नेट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा वाली फॉर्मूला लगा दीजिए। इन विच डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस किस डायरेक्शन में होती है, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होती है। ऑन इक्वेटर इट इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, just like electric field due to dipole on the axis is 2 kp upon r cube into p caret, जबकि इक्वेटर पे माइनस kp upon r cube, माइनस वाली साइन अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, ये नहीं करना है। there are this many molecular dipole in a paramagnetic salt, each has dipole moment of this much, find maximum saturation। अब देखिए इतने डाइपोल्स दिए हैं, हर एक की मतलब हर एक की डाइपोल मोमेंट इतनी है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट भाई मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं करना है इसमें। डोमेन फॉर्मेशन इज नेसेसरी फीचर ऑफ व्हाट, भाई इट्स फेरोमैग्नेटिज्म। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिस मच इज प्लेस इन द ओके टॉर्क एक्सर्टेड m क्रॉस b। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर है, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आनी ही चाहिए। शॉर्ट बार मैग्नेट 30 डिग्री पे है, दिस मच टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है भाई, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। करेक्ट रिलेशन भाई, ये फरवरी का क्वेश्चन फेरोमैग्नेटिक के लिए मैंने बोला था वो बहुत ज्यादा होती है भाई, मतलब इट्स न्यू इज वेरी मच ग्रेटर देन न्यू जीरो। क्या सो जैसा बोला था कि ये वीडियो बहुत छोटा होएगा, क्वेश्चन तो आप फटाफट से इसको सॉल्व कर दीजिए अपने आप, एंड आंसर की के साथ चेक करना मत भूलना। आंसर की नॉर्मली मैं 5-6 घंटे के बाद रखता हूँ, देखते हैं एज सुन एज यू हैव सॉल्व इट कमेंट इन द सेक्शन कि सर आंसर की पोस्ट करिए, तो मैं पोस्ट कर दूंगा आफ्टर यू हैव सॉल्व इट, राइट। So till then, bye bye, take care. We'll be posting chapter number 8 video very soon, possibly today itself. See you later.